آج جو بات ہونے جا رہی ہے وہ کمزور دل والوں کے لیے نہیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے قبر کی پہلی رات کی۔ وہ رات جس میں نہ ماں ساتھ ہو گئی، نہ باپ، نہ دوست، نہ دولت، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جب مٹی آپ پر ڈال دی جائے گی، جب لوگ واپس چلے جائیں گے، جب قدموں کی آہٹ دور ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خاموشی، وہ اندھیرا، وہ تنہائی۔ پھر اچانک زمین ہلے گی، قبر کے اندر سوال ہوگا اور دو فرشتے آئیں گے۔ نہ وہ انسان جیسے ہوں گے، نہ وہ نرم ہوں گے۔ ان کی آواز گرج جیسی ہوگی، ان کی آنکھوں میں سنجیدگی ہوگی، اور وہ پوچھیں گے، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال سادہ ہے، مگر جواب ہر کسی کے لیے آسان نہیں۔ دنیا میں ہم نے بہت کچھ یاد کیا، ڈگریاں، کاروبار، نام پتہ، شناخت، مگر کیا ہم نے اپنے رب کو پہچانا؟ اگر دل نے پہچانا ہوگا تو زبان جواب دے گی، اگر زبان نے صرف کہا ہوگا اور دل خالی ہوگا تو جواب اٹک جائے گا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہم نے دین کو صرف رسم سمجھا یا زندگی بنایا؟ کیا نماز صرف عادت تھی یا ملاقات تھی؟ کیا قرآن صرف تلاوت تھا یا ہدایت تھی؟ پھر تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا ہم نے واقعی محبت کی یا صرف نام لیا؟ کیا سنت پر چلے یا صرف دعویٰ کیا؟ قبر میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ انٹرنیٹ، نہ وکیل، وہاں صرف سچ ہوگا، اور سچ چھپتا نہیں۔ آپ ابھی سانس لے رہے ہیں، یہ سانس آپ کو موقع دے رہی ہے سوچنے کا کہ اگر آج رات یہ سوال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل کیا کہے گا؟ آپ کی زبان کیا کہے گی؟ کیا وہ لرز جائے گی یا مضبوط ہوگی؟ قبر کی پہلی رات اصل امتحان ہے۔ دنیا امتحان کا حال تھی، قبر پہلا نتیجہ ہے۔ اگر وہاں کامیاب ہو گئے تو آگے آسانی ہے، اگر وہاں کمزور ہو گئے تو آگے مشکل ہے۔ ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے ڈر جاتے ہیں، انٹرویو سے، امتحان سے، لوگوں کے سوال سے، مگر قبر کا سوال، اس کے لیے کتنی تیاری کی؟ آپ نے کبھی خود سے پوچھا، میں روز کیا کر رہا ہوں؟ کیا میرا دن مجھے قبر کے لیے تیار کر رہا ہے یا صرف دنیا کے لیے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، رات کو سوتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے، مگر قبر خاموشی سے قریب آ رہی ہے۔ ہر دن ایک قدم، ہر سانس ایک قدم، اور پھر ایک دن دروازہ بند، جنازہ اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے اچھا انسان تھا، مگر قبر میں تعریف نہیں چلے گی، وہاں حقیقت چلے گی۔ آپ کا رب کون ہے؟ یہ سوال صرف زبان کا نہیں، دل کا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو پہچانا ہوگا مشکل وقت میں بھی تو جواب آسان ہوگا۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی جب دل نہیں چاہا، اگر آپ نے قرآن بند کر دیا جب مصروف تھے، اگر آپ نے گناہ کو معمول بنا لیا تو دل کمزور ہوگا، اور کمزور دل قبر میں مضبوط جواب نہیں دے سکتا۔ قبر میں روشنی اعمال سے آتی ہے، نماز روشنی ہے، صدقہ روشنی ہے، اخلاص روشنی ہے، اور گناہ اندھیرا ہے۔ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، روشنی یا اندھیرا؟ ابھی وقت ہے، ابھی سوال دنیا میں ہو رہا ہے۔ خود سے پوچھیں، میرا رب کون ہے؟ اگر جواب دل سے آئے تو خوش ہو جائیں، اگر جواب کمزور ہو تو ابھی سنبھل جائیں، کیونکہ قبر انتظار نہیں کرتی، وہ وقت دیکھ کر نہیں آتی، وہ جوانی نہیں دیکھتی، وہ طاقت نہیں دیکھتی، وہ صرف حکم پر آتی ہے، اور جب آئے گی تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اس لیے آج اسی لمحے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کو مضبوط کریں، قرآن کو مضبوط کریں، سنت کو مضبوط کریں، تاکہ جب وہ سوال ہو تو دل کانپے نہیں بلکہ مطمئن ہو۔ یہ پہلا حصہ تھا، قبر کے پہلے سوال کا آغاز، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کامیاب بندے کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ وہی قبر، وہی اندھیرا، وہی سوال، مگر نتیجہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ دنیا میں سچا تھا، اگر اس کا دل واقعی اللہ سے جڑا تھا، اگر اس نے گناہ سے لڑنے کی کوشش کی تھی، اگر وہ کامل نہیں تھا مگر مخلص تھا، تو منظر بدل جاتا ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو زمین کی سختی نرم ہو جاتی ہے۔ فرشتے سختی سے نہیں، وقار سے جواب سنتے ہیں۔ پھر ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور پھر قبر تنگ نہیں رہتی، وہ پھیلنے لگتی ہے۔ جہاں ابھی مٹی تھی وہاں روشنی آ جاتی ہے، جہاں ابھی خوف تھا وہاں سکون اترنے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے قبر میں سکون کیسا ہوگا؟ وہ سکون جو دنیا کی کسی نیند میں نہیں، وہ سکون جو کسی محل میں نہیں، وہ سکون جو صرف اللہ کی رضا سے آتا ہے۔ پھر اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، خوشبو آتی ہے،
वो खुशबू जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं। वो कहता है, या अल्लाह, कयामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपनी नेमत को मुकम्मल देख सकूं। ये कामयाब बंदा कौन है? क्या वो कोई खास बुजुर्ग था? क्या वो बहुत मशहूर था? क्या उसके पास बहुत इल्म था? जरूरी नहीं, वो बस सच्चा था। वो गुनाह करता था मगर शर्मिंदा हो जाता था। वो कमजोर था मगर अल्लाह से भागता नहीं था। वो गिरता था मगर दोबारा उठ जाता था। असल फर्क यही है, अल्लाह कामिल बंदा नहीं मांगता, अल्लाह सच्चा बंदा मांगता है। जिसने रात को तन्हाई में रो कर कहा हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जिसने हराम को छोड़ने के लिए अपनी ख्वाहिश का गला घूंटा हो। जिसने गुस्से को पी लिया हो हालांकि जवाब दे सकता था। जिसने दिल तोड़ने के बजाय दिल जोड़ा हो। ये छोटे अमल कब्र में बड़ी रोशनी बनते हैं। हम दुनिया में समझते हैं कोई नहीं देख रहा, मगर हर लम्हा लिखा जा रहा है। हर नियत, हर नजर, हर आंसू। और कब्र में ये सब सामने आता है। कामयाब बंदा कब्र में अकेला नहीं होता, उसके अमाल उसका साथ देते हैं। नमाज आकर कहती है, मैं तेरा मुहाफिज हूँ। सदका कहता है, मैं तेरा साया हूँ। कुरान कहता है, मैं तेरा नूर हूँ। और गुनाह अगर उसने सच्ची तौबा कर ली थी तो वो मिट चुके होते हैं। देखा, फर्क सिर्फ एक चीज का है, नियत। आपने अल्लाह को कितना सच्चा चाहा, आपने दुनिया को कितना छोड़ा, आपने हक को कितना अपनाया। कामयाब बंदा वो है जिसने दुनिया को मकसद नहीं बनाया, जिसने कब्र को याद रखा, जिसने हर नमाज को ऐसे पढ़ा जैसे आखिरी हो, जिसने हर रोज सोचा कि शायद आज आखिरी दिन हो। वो कामिल नहीं था मगर गाफिल नहीं था। और यही राज है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में रोशनी हो तो आज रोशनी जमा करें। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में सुकून हो तो आज दिल साफ करें। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते नर्म हो तो आज अल्लाह से नर्म हो जाएं, क्योंकि कब्र दिल का अक्स दिखाती है। अगर दिल जिंदा था तो कब्र जन्नत का बाग है। अगर दिल मुर्दा था तो कब्र अंधेरे का गढ़ा है। अब खुद से पूछें, आप किस तरफ जा रहे हैं? आप क्या जमा कर रहे हैं? आपकी कब्र कैसी होगी? ये फैसला आज हो रहा है। ये फैसला हर नमाज में हो रहा है। ये फैसला हर गुनाह में हो रहा है। ये फैसला हर तौबा में हो रहा है। और याद रखें, कामयाब बंदा कब्र से नहीं डरता, वो डरता है कि कहीं उसका रब नाराज ना हो। जब रब राजी हो जाए तो कब्र भी जन्नत बन जाती है, और ये वादा है। लेकिन अगर जवाब ना दे सके तो, अगर दिल कमजोर हो तो, अगले हिस्से में हम देखेंगे नाकाम बंदे के साथ कब्र में क्या होता है। वही कब्र, वही अंधेरा, मगर उस बार मंजर बदल जाता है। जब फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तो जबान लड़खड़ाती है। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। दुनिया में वो कहता था अल्लाह मेरा रब है, मगर दिल ने कभी उसको पहचाना ही नहीं था। नमाज सिर्फ आदत थी, दिल कहीं और था। कुरान सिर्फ अल्फाज थे, अमल कहीं और था। गुनाह मामूल थे और तौबा सिर्फ लफ्ज थी। फिर दूसरा सवाल होता है, मा दीनु का। वो फिर कहता है, मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उसने दीन को संजीदगी से लिया ही नहीं था। उसके लिए दीन सिर्फ जुमा तक महदूद था, सिर्फ रमजान तक महदूद था, सिर्फ लोगों के सामने तक महदूद था। फिर तीसरा सवाल होता है, उस नबी के बारे में क्या कहते थे? कहता है, मैं लोगों को यही कहते सुनता था और मैं भी वही कहता था। सोचिए, दुनिया में हम कितनी बातें बगैर समझे दोहराते हैं। कितनी बार हमने कहा हम मुसलमान हैं, मगर क्या हमने इस्लाम को जिया? फिर आवाज आती है, उसने झूठ कहा, और फिर कब्र तंग होने लगती है। इतनी तंग के पसलियां एक दूसरे में घुस जाए। वो चीखता है मगर उसकी चीख कोई नहीं सुनता। वो पुकारना चाहता है मगर आवाज बाहर नहीं जाती। वो वक्त मांगना चाहता है मगर वक्त खत्म हो चुका होता है। हम दुनिया में समझते हैं अभी बहुत वक्त है, अभी जवानी है, अभी जिंदगी है, मगर कब्र जवानी नहीं देखती, वो सिर्फ आमाल देखती है। अगर दिल में निफाक था तो कब्र में भी अंधेरा होगा। अगर जबान झूठी थी तो जवाब भी टूटा होगा। अगर आंख हराम की आदी थी तो कब्र में खौफ होगा। अगर दिल सख्त था तो कब्र भी सख्त होगी। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है जो हर इंसान के साथ होगी। फर्क सिर्फ नतीजे का है। दुनिया में हम कितनी तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, इम्तिहान के लिए, शादी के लिए, मगर कब्र के लिए कितनी तैयारी की? कितनी रातें हमने जाग कर अपने गुनाहों पर रोया? कितनी बार हमने सच्ची तौबा की, या हमने कहा अल्लाह गफूर रहीम है और गुनाह जारी रखा? अल्लाह गफूर है मगर मजाक बर्दाश्त नहीं करता। वो माफ करता है
मगर सच्चाई देखकर अगर बंदा तौबा का ड्रामा करे और दिल में इरादा ना बदले तो कब्र में सच सामने आता है। कब्र की पहली रात जिंदगी का खुलासा है। जो दिल में था वही सामने आएगा। अगर दिल दुनिया में लगा था तो कब्र में तन्हाई होगी। अगर दिल अल्लाह में लगा था तो कब्र में रोशनी होगी। आप अभी जिंदा हैं, ये बात सुन रहे हैं, यही मौका है, सोच लें आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आज रात कब्र हो जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आपका दिल तैयार है या सिर्फ जबान तैयार है? नाकाम बंदा वो नहीं जो गुनाहगार था, नाकाम बंदा वो है जो जिद्दी था, जो नसीहत सुनता था मगर बदलता नहीं था, जो जानता था मगर करता नहीं था, जो समझता था मगर टालता था। ये टालना सबसे बड़ा धोखा है। कल से बाद में वक्त मिलेगा, ये अल्फाज कब्र में काम नहीं आएंगे। वहां सिर्फ हकीकत चलेगी और हकीकत सख्त होती है। अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है। अगर दिल कांप रहा है तो खुश हो जाए, क्योंकि दिल जिंदा है और जिंदा दिल हमेशा बदल सकता है। मगर अगर दिल पर असर नहीं हो रहा तो खतरा है, क्योंकि सख्त दिल कब्र में भी सख्ती पाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, रोशनी या अंधेरा, सुकून या घुटन, निजात या निदामत। ये इंतखाब आज हो रहा है। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कब्र के अजाब से बचने का असल रास्ता क्या है। आपने खौफ सुन लिया, आपने कामयाबी भी सुन ली, आपने नाकामी भी सुन ली। अब असल सवाल यह है, बचें कैसे? क्या सिर्फ डरने से बच जाएंगे? क्या सिर्फ सुन लेने से बच जाएंगे? नहीं, कब्र का अमन कुछ खास आदतों से बनता है। पहली बात सुन लें, कब्र अचानक नहीं बनती। कब्र दरअसल आपकी रोजमर्रा जिंदगी का नतीजा है। जो इंसान दुनिया में तन्हाई से डरता था कब्र में भी डरेगा। जो इंसान दुनिया में अल्लाह की तन्हाई का आदी था कब्र में भी सुकून पाएगा। आपने कभी तन्हाई में बैठकर अपने रब से बात की, बगैर मोबाइल के, बगैर शोर के, बगैर किसी की नजर के? अगर आप तन्हाई में बेचैन हो जाते हैं तो सोचें कब्र की तन्हाई कैसी होगी। इसलिए आज से तन्हाई की आदत डालें। हर दिन कुछ वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए रखें। दूसरी बात, जुबान को साफ करें। कब्र में सबसे ज्यादा वजन जुबान के गुनाहों का होगा। गीबत, तंज, झूठ, दिल आजारी। हम समझते हैं ये तो मामूली बातें हैं, मगर यही मामूली बातें कब्र में दीवार बन जाती हैं। तीसरी बात, हक अदा करें। नमाज सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, नमाज को जिंदा रखना जरूरी है। रोजा सिर्फ रखना काफी नहीं, रोजा को किरदार में लाना जरूरी है। कुरान सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, कुरान को फैसलों में शामिल करना जरूरी है। कब्र में सवाल इल्म का नहीं, अमल का होगा। आपको सब मालूम था मगर क्या किया, ये फर्क डालेगा। चौथी बात, हुकूकुल इबाद। आप अल्लाह से माफी मांग लेंगे, मगर बंदों से? जिसका दिल तोड़ा, जिसका हक मारा, जिसे धोखा दिया, कब्र में वही मामला बन सकता है। इसलिए आज किसी का हक वापस करें, किसी से माफी मांग लें, यही असल बहादुरी है। पांचवी बात, दिल को नरम करें। कब्र सख्त दिल वालों के लिए सख्त होती है। जो शख्स दुनिया में रोता नहीं कब्र में रुलाया जाता है। जो शख्स दुनिया में अल्लाह से नहीं डरता कब्र में डराया जाता है। अगर आप चाहते हैं कब्र में आसानी हो तो आज अपने दिल को नरम करें, कुरान के साथ बैठें, नमाज में देर लगाएं, दुआ में जिद करें। और एक अहम राज सुन लें, कब्र की हिफाजत किसी बड़े अमल से नहीं बल्कि मुस्तकिल छोटे अमल से होती है। रोज की 2 रकत मगर सच्ची, रोज का थोड़ा जिक्र मगर दिल से, रोज की थोड़ी सदका मगर इखलास से। ये छोटे अमल कब्र में दीवारे हिफाजत बनते हैं। और एक और बात, गुनाह छोड़ना सिर्फ इरादा नहीं मांगता, माहौल भी मांगता है। अगर आप वही दोस्त रखेंगे, वही जगह रखेंगे, वही आदतें रखेंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। कब्र के सवाल से बचना चाहते हैं तो आज से अपनी सोबत बदलें, अपना वक्त बदलें, अपनी तरजीहात बदलें। और सबसे बड़ी बात, अपने दिल में ये यकीन बिठा लें कि कब्र हकीकत है। हम अक्सर इसे कहानी समझकर सुनते हैं, मगर वो हमारी तरफ बढ़ रही है हर दिन, हर सांस। आपके पास अभी मौका है, कल का यकीन नहीं। अगर आज से संजीदगी आ गई तो कब्र में आसानी आ सकती है। अगर आज भी टाल दिया तो फिर वही अंजाम हो सकता है जो हमने अभी सुना। ये डराने की बात नहीं, ये जगाने की बात है। और अगले हिस्से में हम एक ऐसा मंजर देखेंगे जो दिल को हिला देगा। कब्र के बाद क्या होगा? कब्र अंजाम नहीं है, कब्र आगाज है। असल सफर अभी शुरू होता है। जब इंसान कब्र में रहता है तो वो बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। ये वो मरहला है जो दुनिया और कयामत के दरमियान है।
यहाँ वक्त वैसा नहीं होता जैसा दुनिया में था। यहाँ सालों का हिसाब हमारी समझ से बाहर है। कामयाब बंदा कब्र में सुकून से रहता है और नाकाम बंदा इंतजार में जलता रहता है। फिर एक दिन सूर फूंका जाएगा, जमीन कांप उठेगी, पहाड़ रेजा राह हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, आसमान फट जाएगा और कब्रें खुल जाएंगी। सोचिए, जिस जमीन ने आपको छुपा रखा था वो आपको बाहर निकाल देगी। जिस कब्र में आप अकेले थे वो मैदान हश्र की तरफ धकेल देगी। लोग नंगे पांव, नंगे बदन, परेशान हाल, हर एक अपनी फिक्र में। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, कोई दोस्त दोस्त को नहीं देखेगा। हर शख्स कहेगा, नफसी नफसी, मुझे बचाओ। ये वो दिन है जिसके लिए कब्र तैयारी थी। अगर कब्र आसान थी तो कयामत आसान होगी, अगर कब्र सख्त थी तो आगे मुश्किल है। मगर एक बात याद रखें, कयामत का सबसे बड़ा सवाल वही होगा जो कब्र में था। आपका रब कौन है? आपने जिंदगी किसके लिए गुजारी? दुनिया के लिए या अल्लाह के लिए? आपने कभी सोचा अगर आज कयामत कायम हो जाए तो आप कहां खड़े होंगे? किस सफ में होंगे? रोशनी वालों में या अंधेरे वालों में? कयामत के दिन हर शख्स के हाथ में उसका नामा आमाल होगा। वो खोलेगा और देखेगा वो सब कुछ जो उसने छुपाया था, वो सब कुछ जो उसने तन्हाई में किया था, वो सब कुछ जो उसने सोचा था। यही वो लम्हा होगा जब इंसान कहेगा, काश मैंने संजीदगी इख्तियार की होती, काश मैंने वक्त जाया न किया होता, काश मैंने सच्ची तौबा कर ली होती। मगर वहां काश का फायदा नहीं होगा, वहां सिर्फ नतीजा होगा। अभी आपके पास वक्त है, आप सुन रहे हैं, आप सोच सकते हैं, आप बदल सकते हैं। यही सबसे बड़ी नेमत है। कयामत से पहले, कब्र से पहले जिंदगी को संवार लें, क्योंकि जो शख्स कब्र के लिए तैयार हो जाता है वो कयामत से नहीं डरता। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिरी वक्त में इंसान को क्या नजर आता है और कैसे आखिरी लम्हा सारी जिंदगी का फैसला कर देता है। आपने कभी सोचा है मौत का लम्हा कैसा होता है? वो लम्हा जब सांस आहिस्ता हो जाती है, आंखें धुंधला जाती हैं और दुनिया पीछे रहने लगती है। इसी लम्हे पर्दा उठना शुरू होता है। जिस चीज पर इंसान ने जिंदगी गुजारी वही उसके सामने आती है। अगर उसने दुनिया को सब कुछ समझा तो दुनिया ही सामने होगी। अगर उसने अल्लाह को पहचाना तो अल्लाह की रहमत के आसार सामने होंगे। मौत का लम्हा इंसान को धोखा नहीं देता, वो असल चेहरा दिखाता है। कुछ लोग इस लम्हे घबरा जाते हैं। वो कहने लगते हैं, मुझे वापस भेज दो, मैं अभी तैयार नहीं था। मगर वापसी नहीं होती। और कुछ लोग मुस्कुराते हुए जाते हैं क्योंकि वो तैयार थे। वो जानते थे ये सफर आर्जी था। उन्होंने दुनिया को घर नहीं समझा था, उन्होंने कब्र को याद रखा था। आप जानते हैं सबसे खतरनाक चीज क्या है? गफलत में मौत। वो शख्स जो कभी संजीदा नहीं हुआ, जो कहता रहा अभी वक्त है, जो टालता रहा, जो समझता रहा मैं जवान हूं, मगर मौत ने उम्र नहीं देखी, न ताकत देखी, न मंसूबे देखे, वो बस आ गई और जो कुछ जमा था वही साथ गया। आप आज सांस ले रहे हैं, ये मामूली बात नहीं, ये मौका है, ये मोहलत है। हर सांस एक पैगाम है कि अभी वक्त है, अभी दरवाजा खुला है। अगर आप चाहते हैं कि आखिरी लम्हा आसान हो तो आज जिंदगी को सीधा करें। अगर आप चाहते हैं कि आंखें बंद होते वक्त सुकून हो तो आज दिल को साफ करें। अगर आप चाहते हैं कि कब्र रोशनी बन जाए तो आज रोशनी जमा करें। मौत अचानक आती है मगर तैयारी अचानक नहीं होती। तो भाई, आपने कब्र की पहली रात सुन ली, कामयाबी भी सुन ली, नाकामी भी सुन ली, कयामत का मंजर भी सुन लिया और आखिरी लम्हे की हकीकत भी जान ली। अब सवाल सिर्फ एक है, आप क्या करेंगे? क्या ये सब सुनकर फिर मामूल की जिंदगी शुरू कर देंगे या आज वाकई कोई फैसला करेंगे? याद रखें, कब्र दूर नहीं है, कयामत दूर नहीं है, मौत दूर नहीं है। दूर सिर्फ हमारी संजीदगी है। अगर आज दिल कांप रहा है तो उसे जाया न करें। यही वो लम्हा है जो तकदीर बदल सकता है। आज अहद करें, मैं नमाज को मजबूत करूंगा, मैं गुनाह को मामूल नहीं बनाऊंगा, मैं तौबा को कल पर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने रब को सच्चा मानूंगा, क्योंकि कामयाबी सिर्फ उसी में है कि अल्लाह राजी हो जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो उसे सिर्फ देखकर मत चले जाएं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल दीन रूह को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी दिल हिला देने वाली और आखिरत की याद दिलाने वाली वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह मुझे कबूल फरमा, ताकि ये जुमला आपके दिल की गवाही बन जाए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए, हमारी कब्र को रोशन करे और हमें आखिरी सांस तक ईमान पर कायम रखे। अल्लाह हाफिज।